Hi, Dr. Sarthak. Hi, Gaurav. Hi, Dr. Sarthak. Yes. I would need a heads up when we start. Yes, we can start. I can hear a little echo. Is it fine at my end? Is it okay now? Yeah, much better. Okay. Gaurav, is it already on? Yeah. It's start. You can start. Okay, ठीक है. Hi everyone, thank you for joining us today in this webinar organized by Tata 1mg. Just to share a little context, Tata 1mg is India's most loved and one of the largest healthcare platform. We help you get your medicines delivered within the convenience of your homes. Your lab is scheduled at the comfort of your home and also help you get in touch with specialist doctors online and deliver trustworthy health content at just fingertips. With this, I would just like to begin on why we are here and what is the theme for today's webinar. So 31st May is celebrated and observed as World No Tobacco Day. And right before joining this session, I was just going through some research which states that there are a lot of people who are trying to quit smoking, but on an average, every tobacco consumers has to at least try at least 30 times to quit tobacco or smoking, which seems like a lot of patience and lot of reattempts. With this, I would just like to introduce our expert for today's webinar, Dr. Sarthak Chakravarty. Please join me in welcoming Dr. Sarthak. आज या इस वेबिनार में हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बात करेंगे कि आपको टोबैको से क्या हानि हो सकती है. ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू मे बी नोइंग कि टोबैको के बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, बस इन एक्चुअलिटी कौन कौन से हेल्थ हजार्ड्स आपको डेली लाइफ में इफेक्ट करते हैं, पहले दिन से जब आप छोड़ना शुरू करते हैं तो किस तरीके के बेनिफिट्स आप अपनी हेल्थ में देख सकते हैं, एंड व्हाट इट रियली टेक्स टू क्विट स्मोकिंग. With this, I would just like to share a small introduction to Dr. Sarthak Chakravarty. Dr. Sarthak is a renowned expert in trauma specialization from Apollo Hospital, and he has also emerged as a leader and authoritative doctor in the space of COVID-19 and late COVID-19 management. With this, his attempts and his quit smoking campaign has received a lot of accolades from the authorities at different levels. He has successfully assisted over 500 individuals in completing their quitting smoking journey. And Dr. Sarthak, I think your program, I have heard from a lot of people, it's one of the most compassionate and knowledge-driven support out there. I really wish that all of us should unravel most of the basics aspects, what it takes to quit smoking and what it takes to actually living a smoke-free or a tobacco-free life in here with Dr. Sarthak's inputs. Over to you, Dr. Sarthak. Thank you, Swati. Dr. Swati, as you had just mentioned, today on the World Tobacco Day, it is my pleasure to be on such a wonderful platform as 1mg and help
people understand the pros and cons about smoking and why it is necessary to quit and what can it cause. It can not only cause damage to yourself but also to people who are around you, your loved ones, or public in general. तो कैरिंग दिस फॉरवर्ड, आई थिंक हमारे जो YouTube के दर्शक है ज्यादातर लोग हिंदी प्रेफर करेंगे, तो आज की हमारी भाषा इंग्लिश होगी। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी साथ में प्रेजेंट करना चाहूंगा ताकि लोगों को समझने में भी आसानी हो। उसको शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि इट इज ऑल अबाउट द जर्नी। ये सिर्फ काफी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये सोचते हैं कि मेडिसिन दे दीजिए, सिगरेट में क्विट नहीं कर पा रहा हूँ और मेडिसिन खा के क्विट हो जाएगा। तो ये कोई बीमारी तो है नहीं कि आपको फीवर हुआ, आपने पैरासिटामोल ले लिया एंड देन यू आर कंप्लीटली ऑलराइट, फीवर खत्म हो गया। नहीं, स्मोकिंग इज अ हैबिट, इज अ थॉट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, जिसकी वजह से आपको आदत पड़ी हुई है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस वजह से स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक पूरी जर्नी होती है, मोर देन मेडिसिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, बिकॉज दिस जर्नी कैन ओनली बिगिन, वो तभी संभव है जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको छोड़ना है। अगर आप किसी के फोर्स में आगे करेंगे, अगर कोई कहेगा या आसपास कोई स्मोक नहीं करता, या लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, या खुद सोच रहे हैं एवरीडे कि हाँ छोड़ना है छोड़ना है, बट छोड़ नहीं पा रहे, वो चीज नहीं हो सकती है। आपको दृढ़ निश्चय करना है। काफी समय ये देखा गया है इट्स ऑल अबाउट विल पावर। काफी डॉक्टर्स, काफी लोग कहते हैं, बट यू नो आई डोंट लाइक दिस टर्म विल पावर, क्योंकि अगर सक्सेस हो गया तो विल पावर था और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो विल पावर स्ट्रांग नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, विल पावर होता है। देयर इसमें एक और चीज जो बहुत कॉमनली देखी गई है, दैट इज द रिलैप्स रेट। काफी सक्सेसफुल स्मोकर्स जो सक्सेसफुली क्विट कर देते हैं, अराउंड 20-25% फिर से रिलैप्स हो जाते हैं विद इन, मतलब शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन आई वुड से विद इन 1 week, बट देन मोस्ट कॉमनली विद इन 6 to 8 months। तो 6 से 8 महीने बाद वो फिर से स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। तो उस केस में भी क्या करना है हम अभी देखते हैं। आई वुड शेयर माई स्क्रीन। I'll just be sharing, Dr. Swati. Hope you can take over for 1 minute. Sure. मीनवाइल अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं जिनमें आप डॉक्टर सार्थक से आंसर्स चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी आप स्मोकिंग या टोबैको को क्विट करना चाहते हैं बट कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। एक बार हम सारा डिस्कशन कंप्लीट कर लें, आपके साथ टिप्स शेयर कर दें, उसके बाद विल आल्सो टेक योर क्वेश्चंस अलोंग। I'll just have to rejoin. Just give me 1 minute. Sorry. No issues. Dr. Sarthak will be back in a while, but उसके बीच में मैं पैसिव स्मोकिंग से रिलेटेड भी आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। While a lot of active smokers will be harming their health, सेकेंड हैंड स्मोक और पैसिव स्मोक के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेडिकल डिटेल्स और मेडिकल इनपुट्स हमको जिन बारे में जानना चाहिए वो डॉक्टर सार्थक कवर करेंगे, बट जस्ट अ लिटिल हेड्स अप, feel free to ask people and call it out when you really want them to be not smoking around you. So yeah, Dr. Sarthak, are you back? Yes. Over to you. I hope you can see my screen, Dr. Swati. Okay.
Share करते हैं. So, everyone, so let's talk about quitting smoking कि कैसे हम quit कर सकते हैं. आप quit करना चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्या harms है इसमें, and आगे की जर्नी कैसी होती है एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप quit करना चाह रहे हैं. तो as per the government they would always try to scare you, या लोग डराएंगे कि ये चीजें हो सकती हैं और उससे फिर स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए आपको. इस तरह की वार्निंग तो हम आई थिंक मोर देन 10 years से देखते हुए आ रहे हैं. आई वुड नॉट स्टॉप एट दैट स्क्रीन की लोगों को अच्छा नहीं लगता देखने में, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों से डरा के नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे मेन जो रीजन होता है कि हम क्यों एडिक्टेड हो जाते हैं सिगरेट से, वो है निकोटीन. निकोटीन इज द थिंग दैट गिव्स आवर ब्रेन द रिवॉर्ड सेंटर बूस्ट, और हमें अच्छा लगता है. हमारे ब्रेन में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है. ये केमिकल रिलीज होते ही वी फील गुड, वी फील लाइट, वी फील एलिवेटेड, और हम जितना ज्यादा निकोटीन बॉडी में जाता है उतना ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है, फॉर विच वी बिकम एडिक्टेड. क्योंकि जब हम स्मोक नहीं करते हैं, द डोपामिन सेंटर्स ट्राई टू लुक फॉर कि वेयर इज द निकोटीन, निकोटीन कहाँ है और क्यों नहीं आ रहा है, एंड देन इट स्टार्ट्स मेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी. एजिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, नींद नहीं आएगी, और भी काफी सारे, इनफैक्ट पेट में दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग, काफी सारे कोलिनर्जिक सिम्टम्स हो सकते हैं, जिस वजह से आपको फिर आप वापस आप ट्राई करके भी नहीं छोड़ पाते हैं. देन यू स्टार्ट स्मोकिंग अगेन, एंड इन दैट केस यू फील बेटर वंस यू स्टार्ट स्मोकिंग, क्योंकि फिर से डोपामिन रिलीज होने लगता है. So as per today's topic, that today is World No Tobacco Day. So it's not only about smoking, it's about different forms of tobacco. सिर्फ सिगरेट में ही नहीं, सिगार्स, बीड़ी, च्यूइंग टोबैको जो खैनी, गुटखा, पान मसाला ये चीजें खाते हैं, हुक्का में लेते हैं, स्मोकिंग पाइप्स में ले सकते हैं. तो ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोबैको है जिसमें जो है कि आपके बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स और निकोटीन्स जा रहा है, और स्लोली यू विल गेट एडिक्टेड टू दिस. तो किस तरीके से ये हमें हार्म कर रहा है हम देखेंगे. इन चीजों के अलावा आजकल काफी कॉमनली एक चीज आई है, स्पेशली जिसको लोग यूज करते हैं अपने हैबिट को छोड़ने के लिए, सिगरेट को छोड़ने के लिए. तो दैट इज योर वेपिंग. ई वेप्स, ई सिगरेट्स कहा जाता है. इंडिया में एक्चुअली ये बैन है, इंडिया में सेल नहीं होता है और इलीगली सेल होता है, बट यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप एरिया में ये काफी पॉपुलरली अवेलेबल है. लेकिन पाया गया है कि दिस इज इवन मोर डेंजरस. ये आपको निकोटीन तो प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी को केमिकल, हार्मफुल केमिकल से बचाता है, लेकिन इसमें देखा गया है कि जो एक मतलब सडनली हुआ क्या कि यूके के डॉक्टर्स को एक स्टडी के अंदर काफी सारे केसेस मिलने लगे जहां पे यंग एडल्ट्स, इवन ओल्ड पीपल में काफी ज्यादा निमोनिया के केसेस आ रहे थे, और ब्लड टेस्ट वगैरह करने में पाया गया ना वायरल निमोनिया है, ना बैक्टीरियल निमोनिया है, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है. फिर कंप्लीट थरो स्टडी एंड गेस करने के उनसे बात करने के बाद पता चला कि दे वर ऑल स्मोकिंग ई सिगरेट्स. तो ई सिगरेट इज it's just like a punch to your lungs. वो immediately उसके imbalance cause करते हैं, और बहुत ही जल्दी, मतलब within using of 1 month आपको निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें लंग्स में पानी भर जाता है. तो इसलिए ई सिगरेट्स और डेंजरस है. ई सिगरेट्स अवॉइड करें.
तो ये सिगरेट हार्मफुल होता क्यों है? द सिगरेट इज हार्मफुल बिकॉज इट्स नॉट जो एडिक्शन का रीजन है दैट इज निकोटीन, बट निकोटीन के अलावा द सिगरेट इतना सा स्मॉल सा सिगरेट दैट कंटेन्स more than 7,000 chemicals inside it, and some of them are literally poison. Arsenic होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बेंजीन 1,2,3 ब्यूटाडीन, कैडमियम, ये सारी चीजें, इनमें से कोई चीजें पेस्टिसाइड होती हैं, कोई चीजें इवन ऐसी भी चीजें इसमें होती है जिनको कि रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है, पेट्रोल, इस तरह की काफी सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पेंट भी होता है, थिनर्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। उस प्रोसेस के थ्रू ही सिगरेट बनाया जाता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ निकोटीन इनहेल नहीं कर रहे हैं, जो स्मोक निकल रहा है उसमें ये सारे केमिकल्स होते हैं। तो एवरी पफ इज डिस्ट्रॉइंग योर लंग्स, योर बॉडी, एवरीवे। और वो क्या क्या हार्म करते हैं हम अभी देखेंगे। सो जैसा कि मैं शुरू में डॉक्टर स्वाति आपसे भी बोल रहा था कि दिस इज ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ द स्मोकिंग, दैट यू हैव टू डिसाइड कि नहीं, मुझे स्मोक नहीं करना है। Unless and until you decide that you will always go back to smoking, आपने 2 दिन छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दिया, 10 दिन छोड़ दिया, but after that then you will again, मतलब कुछ हो गया, टेंशन हो गई, इरिटेशन हो गया, मन नहीं लग रहा है, चलो एक छोटा सा पफ ले लेते हैं, थोड़ा सा बेटर फील होगा, बिकॉज दैट गिव्स बूस्ट टू योर ब्रेन, डोपामिन रिलीज होता है। तो ये इस तरह का है कि भाई आप किसी के फोर्स में आके छोड़ रहे थे या जस्ट एक ट्राई कर रहे थे, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट एंड foremost कि I really want to quit smoking. There would be some base reasons. काफी लोगों के लिए होता है वो अपने बच्चों के सामने नहीं स्मोक करना चाहते या उनके बच्चों को हार्म होगा। काफी लोगों के लिए उनकी सेल्फ, खुद की हेल्थ काफी डिटोरिएट हो गई है, स्टेमिना खत्म हो गया है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं। So all these things slowly pile up, add up, and eventually आप सबको पता है कि it causes lung cancer हो गया। तो इंडिया में भी काफी चीजें अभी पीछे हैं, फॉरेन में इवन दे डू लंग ट्रांसप्लांट्स एंड ऑल, बट यू नेवर नो कि व्हेन यू विल गेट टू नो। हो सकता है एकदम लेट पता चले, लेट स्टेजेस में। सो व्हाई टू टेक दैट जर्नी, व्हाई टू सिट ऑन दैट बस। तो जैसा कि कहा था, स्मोकिंग हार्म्स ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आप ये ना सोचे कि जब आप स्मोक कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लंग्स में जा रहा है और लंग्स को डैमेज कर रहा है या नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू जा रहा है। काफी लोग गुटखा खाते हैं, उनके मुंह में छाले हो जाते हैं, धीरे धीरे माउथ ओपनिंग बंद हो जाती है। स्पेशली जो लोग गुटखा खैनी खाते हैं, दे कम टू मी, देयर इज ओरल म्यूकोसल फाइब्रोसिस। वो मुंह इतना, मतलब the mouth opening should be 4 fingers, but then they don't even have 2 fingers opening. तो उसमें आप खा नहीं पाते, आप मुंह खोल के बोल नहीं पा रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। एंड दीज आर वेरी लेट स्टेजेस। इस स्टेज में आपको चांस रहता है कि आपको मुंह का कैंसर भी हो जाए। तो सिर्फ सिगरेट नहीं, सारे फॉर्म ऑफ all the form of tobacco are very harmful to your body and to almost all the parts of the body. हम आगे देखेंगे कि ये हमारे पूरे बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है। And equally harms people around you. Passive smoking भी equally dangerous है। There are studies that say कि अगर आप कमरे के अंदर सिगरेट पी रहे हैं तो वो धुएं से निकली हुई चीजें घंटों उसमें आपके रूम में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है। चाहे आप एयर प्यूरिफायर चला रहे हैं या एसी ऑन कर रहे हैं, एग्जॉस्ट ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से काफी चीजें काफी हैवी होती है जो सेटल डाउन हो जाती है। एंड व्हाट हैपेंस इज कि ये भी पाया गया है कि अगर दूसरे रूम में कोई स्मोक कर रहा है तो वो
इवन वॉल के क्रैक्स के थ्रू सीप करके इस तरफ आ सकता है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, प्लीज डोंट स्मोक इन योर हाउस, प्लीज डोंट स्मोक अराउंड योर लव्ड वंस। आप उनको भी इक्वली डेंजर में डाल रहे हैं। एक नॉन स्मोकर का भी चांस इक्वली बढ़ जाता है लंग कैंसर का जितना कि एक स्मोकर का होता है। अगर आपके फैमिली में कोई है, स्पेशली बच्चे, मेक देम योर मोटिवेशन टू wield upon this journey and quit smoking. We will discuss how and all that. तो अब हम लोग देखते हैं कि how it affects throughout the body, not only the lungs, कि lungs में ये कैसे डैमेज करता है, उसके साथ साथ और क्या क्या डैमेज करता है। स्मोकिंग इज द नंबर 1 प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ लंग कैंसर। ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है। अगर आप न्यू स्मोकर है या काफी टाइम नहीं हुआ, 4-5 साल ही हुए हैं, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, चीजें अभी भी रिवर्स हो सकती है, पीछे आ सकती है। जो भी चेंजेस हुए हैं इतनी जल्दी इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं आते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज lung cancer can be there if you are a smoker over 10 years or smoking more than 20 cigarettes a day, 2 packs a day, तो उसमें lung cancer होने के chances बढ़ जाते हैं। Even the first puff itself can lead to that अगर genetic disposition वगैरह है, but sooner you quit, sooner the changes, reversible changes start happening. Second, about 1 in 5 deaths caused by heart diseases due to smoking. तो smoking basically what it does is कि वो आपके blood vessels को काफी constrict कर देता है। There is restrained blood flow. उस blood flow को कम होने की वजह से ही stroke या heart attack के chances बढ़ जाते हैं। और smoking is one of the number 1 causes, one of the top 5 causes. प्लस देखिए टोबैको यूजर, स्पेशली जो च्यूइंग गुटखा होता है, च्यूइंग टोबैको होता है, इट कैन ऑलवेज इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल्स। हमेशा आपके ब्लड शुगर लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, ये सारी चीजें ऊपर रहेंगी और इवेंचुअली इट कैन कॉज यू डायबिटीज, इट कैन हार्म योर लिवर, किडनी, स्प्लीन हार्म होने से इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड आपको डायबिटीज हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। टोबैको स्मोक कंटेन्स डजन्स ऑफ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स एंड पॉइजन्स। अभी मैंने आपको दिखाया ही था पिछले स्लाइड में कि देयर आर मोर देन 7,534 टू बी एग्जैक्ट नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं एक सिगरेट में। तो इतने सारे केमिकल्स आप नॉर्मली दवाइयां नहीं खाते हैं डॉक्टर से लेके कि दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या है, आप 10 बार पूछेंगे। तो जान के भी इतने सारे केमिकल जिनका आपको पता भी नहीं इफेक्ट क्या होता है, आप जरूर स्मोक करेंगे। सो दिस इज समवट यू हैव टू अंडरस्टैंड, नो एंड मेक अप योर माइंड दैट दिस स्मोक, दिस गुटखा, दिस टोबैको इज हार्मिंग योर बॉडी समवेयर और द अदर। इवन पैसिव स्मोकिंग, आपके घर में अगर कोई स्मोकर है, प्लीज उनसे कहिए कि स्मोकिंग बंद करे, सबकी भलाई के लिए, उनकी खुद की भलाई के लिए। Tar from the cigarette makes your lung work harder. क्या होता है कि एक tar जैसा सब्सटेंस इन केमिकल के मिक्सचर से बनता है। आपने मूवीज वगैरह के स्टार्टिंग में भी देखा होगा, वो लंग्स को निचोड़ के निकालते हैं और ये टार उसमें से निकलता है, काला कोल तार जैसी चीज होती है। तो ये बेसिकली काफी स्टिकी होती है और ये आपके पूरे लंग्स में चिपक जाती है। तो चिपकने की वजह से लंग्स जो हमारा ऐसे फैल रहा है और खुल रहा है, आपको ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजनेशन में हेल्प कर रहा है, इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड देन वो धीरे धीरे काम करेगा, पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। एंड विद फर्दर स्मोकिंग ओवर द इयर्स, टाइम के साथ साथ आपका लंग्स हार्ड हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है। और फाइब्रोसिस इज नॉट एन रिवर्सिबल चेंज। एक बार अगर हार्ड हो गया, फाइब्रोसिस हो गई है, जो पोर्शन हार्ड हो गया है वो कभी फैल नहीं सकता, वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इसलिए डैमेज हो गया है उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर और डैमेज ना हो, इसलिए क्विट स्मोकिंग जरूरी है, स्मोकिंग छोड़ना।
इट मेक्स ब्लड थिकर, इंक्रीज योर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है ब्लड में, ब्लड रेड सेल्स की साइज ज्यादा बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ब्लड थिक हो जाता है। और कई बार आपने किस्से सुने होंगे कि विंटर्स के टाइम में लोग अंगीठी जलाते हैं, स्पेशली पहाड़ों वगैरह में, और कमरा बंद करके सो जाते हैं, या हीटर वगैरह भी पहले के दिनों में रॉड वाले हीटर आते थे, वो हीटर जला के कमरे में, और पूरा कमरा बंद करते थे, कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं होता है। उस वजह से क्या होता है कि कमरे की पूरी ऑक्सीजन बर्न आउट हो जाती है, ऑक्सीजन जहां बर्न हो खत्म हो जाती है, उसके बाद जब हम ब्रीथ करते हैं तो कार्बन के साथ हमारे रेड सेल्स मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड बिल्कुल थिक हो जाता है। और उसमें पहले के पेपर्स में भी ये खबरें आती थी कि रात को कमरे में हीटर जला के, अंगीठी जला के सो गए, सुबह कमरे में सब कोई सबकी डेथ हो गई, सब पाया गया, सब कोई डेथ। तो वो क्या होता है कि आप नींद में ही आप इतना ब्लड थिक हो गया है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है आपके बॉडी को, और उसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, और नींद में ही डेथ हो जाती है। कुछ ऐसा ही स्मोकिंग के साथ भी होता है कि धीरे धीरे आपका ब्लड एकदम थिक होने लगता है, ऑक्सीजनेशन कम होने लगता है, आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे, स्टैमिना नहीं रहेगा, थकान महसूस होगी। तो ये दीज आर ऑल द सिम्टम। हमेशा नींद आती रहेगी, हमेशा ड्राउजी फील करेंगे, बैठे बैठे सो जाएंगे, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है प्रॉपरली, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो और जहां आप स्मोकिंग छोड़ते हैं, विद इन फ्यू आवर्स ये रिवर्सिबल चेंज होता है। हम अभी देखेंगे कि क्या क्या रिवर्सिबल चेंजेस हैं। फीमेल स्मोक करते हैं, आपको ये काफी सीवियरली डैमेज करता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी। देयर कुड बी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, काफी सारे यूट्रस रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं, जैसे लंग्स में फाइब्रोसिस होता है, उसी तरह यूट्रस में भी फाइब्रोसिस होने लग जाते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के टाइम स्मोक करते हैं, उस टाइम वो बेबी को भी हार्म करता है, काफी डैमेज होता है फीटस। तो इसलिए अपने हेल्थ के लिए, अपने बेबी के हेल्थ के लिए भी स्मोकिंग क्विट करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली मेल्स में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शंस। नंबर 9 पॉइंट, जैसा मैंने कहा था, फैमिली को भी कैंसर होने के इक्वल चांसेस रहते हैं। एंड 10 पॉइंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड करने लगता है, ब्लड थिक हो जाता है। सो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज नॉट ओनली 10 रीजंस, और भी है, हजारों रीजंस है, बट वंस यू क्विट, यू कम आउट ऑफ दिस वेब दैट cigarette or tobacco builds around you based on nicotine। निकोटीन के एडिक्शन के जाल में मत फंसिए, उससे बाहर निकलिए। कैसे निकल सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जस्ट अ क्विक ग्लांस ऑन कि क्या क्या रिवर्सिबल चेंजेस है जब आप स्मोकिंग स्टॉप करते हैं, आपकी बॉडी कैसे बेटर फील करने लगती है। Within 20 minutes, blood pressure goes down, heart rate goes down, hands and feet get warmer। जो स्मोक करते हैं उनकी धड़कनें हमेशा तेज रहती है, काफी टाइम उनको घबराहट महसूस होती है, घबराहट की वजह से वो और स्मोक करते हैं कि थोड़ा बेटर फील हो। बीपी हाई रहता है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द नंबर 1 कॉजेज ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। Within 20 minutes आप स्मोक कर रहे हो तो उस टाइम हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। छोड़ देने के Within 20 minutes ब्लड प्रेशर फिर बैक टू नॉर्मल आ जाता है। आफ्टर 8 hours ब्लड कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इट इज डाउन। जो मैं कह रहा था, ब्लड थिक होने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जमने लगता है। Within 8 hours अगर आप 8 घंटे तक स्मोक नहीं करते हैं, वो लेवल नॉर्मल आ जाता है, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो जाता है बॉडी में। आफ्टर 24 hours हार्ट अटैक रिस्क कम हो जाता है। एंड Within 48 hours बॉडी बिकम्स निकोटीन फ्री। ये जो सिगरेट छोड़ने की जर्नी है, सबसे जो स्ट्रगलिंग पार्ट है, दैट इज 48 to 72 hours। 3 दिन तक अगर आप सस्टेन कर गए, इन दैट केस योर बॉडी बिकम्स निकोटीन फ्री, और उसके रिसेप्टर्स भी धीरे धीरे हट जाते हैं बॉडी से, एंड यू फील मच बेटर, मच रिलैक्स। आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स रिलैक्स हो जाते हैं,
हैं। लंग्स के अंदर के जो एंडिंग्स होती थी सीलिया करके, उसमें लंग्स में एक चीजें होती है जो डस्ट को बाहर फेंकती हैं, वो डेड हो जाती थी, वो इम्प्रूव होती हैं, वो फिर से बाहर आके अपना पूरा फंक्शन करने लगती है। इसीलिए आप में से काफी लोगों ने जिन्होंने क्विट करने की कोशिश की होगी उन्होंने देखा होगा कि थर्ड या फोर्थ डे पे ना खांसी बढ़ जाती है, ज्यादा चीजें कफ निकलने लगता है, बिकॉज द लंग्स इज ट्राइंग टू थ्रो आउट ऑल द टार एंड अदर केमिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी। ये जस्ट आपके बॉडी का क्लेंजिंग प्रोसेस है जिससे आपको प्यूरिफाई कर रही है बॉडी खुद ब खुद। हमारे बॉडी में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो दैट टेक्स केयर ऑफ अस, हमारी इम्यूनिटी, हमारे बॉडी पार्ट्स, सीलिया, बट अगर हम ही उनको अपना फंक्शन करने ना दे, सिगरेट पीने से वो जल जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते, तो कैसे वो हमारी बॉडी को सेफ रखेंगे? After 48 hours, body becomes nicotine free. Nerve endings adjust to nicotine, missing nicotine. Sense of smell and taste improve. जो chronic smokers होते हैं उनको अच्छे से स्मेल नहीं आती, उनके टेस्ट बड्स डैमेज हो जाते हैं नर्व एंडिंग्स के, स्पेशली गुटखा च्यूअर्स जो होते हैं उनको टेस्ट नहीं आता, खाने में सब कुछ हमेशा मुंह में बर्निंग फीलिंग रहती है, जलता रहता है, जलन रहती है। तो जब आप ये चीजें छोड़ते हैं, जो इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 50 to 70% रिवर्सिबल डैमेज होता है, जो फिर से आपके टेस्ट बड्स इंप्रूव करने लगते हैं, आपको बेटर टेस्ट आने लगता है मुंह में, और जो है स्मेल भी इंप्रूव हो जाती है। After 2 to 13 weeks, blood circulates better, exercise is easier. आप खुद को फील होगा कि within 2 months आपका स्टेमिना कितना इम्प्रूव हो गया, आप सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बेटर फील होगा, अपने आप अच्छा लगने लगता है, और उस समय आपको निकोटीन की फील नहीं रहती है। After 1 year, हार्ट अटैक रिस्क कट से हाफ, 1 साल के अंदर ही हार्ट अटैक का रिस्क हाफ हो जाता है, जो स्मोकिंग की वजह से डैमेजेस हुए थे वो कम हो जाते हैं। आफ्टर 5 years कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस एक नॉन स्मोकर के बराबर के हो जाते हैं, माउथ थ्रोट ब्लैडर कैंसर। देखिए जैसा मैं कह रहा था कि ब्लड स्ट्रीम में ये केमिकल मिक्स होकर पूरे बॉडी में जाता है, तो इट नॉट ओनली डैमेजेस योर लंग बट इट डैमेजेस थ्रू आउट द बॉडी। सिर्फ आपको लंग्स का नहीं, आपको माउथ का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, काफी सारी चीजें ये अफेक्ट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, फीमेल्स में प्रेगनेंसी अफेक्ट करता है। सो it not only is harmful for your lungs but your whole life journey as a whole. ठीक है, हम इतनी देर से बात कर रहे थे कि इतना सारा डैमेज होता है, क्विट करना चाहिए, कैसे किया जाए। मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन मैं क्विट कर नहीं पाया, या कुछ दिन क्विट करने के बाद ही फिर से रिलैप्स हो गया। क्या तरीके हैं, क्या आपने सही तरीका चुना था, क्या आप उस फॉर्म में गए थे, क्या आपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हेल्प ली थी, अगर आपने ली थी तो उसमें क्या मेडिसिन लिए थे, क्या होना चाहिए मेडिसिन लेने का तरीका, क्या काउंसलिंग वगैरह की मदद ली थी आपने जो आपको मोटिवेशन दे, आपने अपने फूड और डाइट में क्या चेंजेस किए थे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने अभी इस सेशन के शुरुआत में ही बताया था कि दिस होल थिंग इज अ जर्नी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट वन मेडिकेशन और वन डिसीजन कि आज कल से मैं स्मोक नहीं करूंगा, बट उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स का, आपके फ्रेंड्स का, जो सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर है, जो काउंसलर है, सबके हेल्प से ही आप छोड़ सकते हैं। हेल्प लीजिए, हेल्प जरूर मांगिए, क्योंकि लोग खुशी खुशी आपकी हेल्प करेंगे। यू आर डूइंग द राइट थिंग, राइट। सो कैसे किया जा सकता है क्विट, हाउ विल वी प्लान टू क्विट।
अभी तक जो मैं कहता आ रहा था, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी डिसाइडेड. आगे कुछ भी करने से पहले क्या आप डिसाइडेड हैं कि आप क्विट कर चुके हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने ये फाइनली, मतलब यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर अ नॉन स्मोकर. ये नहीं सोचना है क्या मैं क्विट कर सकता हूँ, क्या मैं क्विट कर पाऊंगा, या क्विट करने के बाद कैसा रहेगा. नहीं, आप आपके आसपास कोई है नॉन स्मोकर है, या आप अपने आप को उस टाइम में इमेजिन कीजिए जब आप स्मोक नहीं करते थे. यू हैव टू इमेजिन योरसेल्फ एज अ नॉन स्मोकर. ठीक है. अभी कभी भी ये मत कहिए जैसे आप अब स्मोक नहीं कर रहे हैं, 3 दिन में ही आपको थॉट आ रहा है तो आप सोचे नहीं, डोंट स्मोक, डोंट थिंक ऑफ अ सिगरेट, थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. नहीं, दैट विल नॉट वर्क. योर ब्रेन कैनॉट टेक नेगेटिव इनपुट्स. वो डोंट को नहीं बोलता है. एज सुन एज यू थिंक डोंट स्मोक अ सिगरेट, आपके दिमाग में सिगरेट की इमेज आ जाती है. यू हैव टू डील विद दिस. एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं. मैं आप सबसे कहता हूं कि डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट. ठीक है. नहीं, यू शुड नॉट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट. पिंक एलिफेंट शुड नॉट कम टू योर माइंड. व्हाट हैपेंड? आपकी आंखों के सामने आ गया ना एक पिंक एलिफेंट. डॉक्टर स्वाति? Yes, I could really sense it and envision it. Exactly. This is how our brain works. It cannot take in. अगर आप बच्चों को कहते हैं कि प्लीज डोंट गो देयर, वो ज्यादा इंट्रिग्ड हो जाते हैं कि उधर क्या है जाने के लिए. ब्रेन कैनॉट, अवर सबकॉन्शियस कैनॉट प्रोसेस डोंट. तो इसके लिए क्या तरीके होते हैं? हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको हेल्प करेंगे, डॉक्टर हेल्प करेगा, काउंसलर हेल्प करेगा. कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी वी वर डिस्कसिंग दिस. व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन आफ्टर क्विटिंग यू कैन चेंज द सिगरेट टू समथिंग एल्स. इन द सेंस, सिगरेट की जगह सिगरेट का नाम हवा रख दीजिए, एयर रख दीजिए. मुझे हवा की जरूरत है. आपको मन हो रहा है सिगरेट पीने का, आप सोच रहे मुझे हवा की जरूरत है. ब्रेन फिर हवा के बारे में ही सोचेगा. ये एक दिन में हो नहीं सकता, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो उस तरीके से जब आप सोचने लगेंगे, आपके दिमाग में भी सिगरेट की इमेज नहीं आएगी, अब हवा की इमेज आएगी. या चॉकलेट रख दीजिए, मुझे चॉकलेट की जरूरत है. ब्रेन उस चीज को प्रोसेस करेगा, चॉकलेट की इमेज आएगी. अब इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे. ये एक तरीका है, और भी कई सारे तरीके होते हैं. तो प्लान टू क्विट, सेट अ डेट टू क्विट विद इन नेक्स्ट 7 days. ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. जब आप आके हमसे मिलते हैं, आप कितना सिगरेट पीते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं विदाउट सिगरेट, एंड एवरीथिंग वी डिस्कस एंड देन वी सेट अ क्विट प्लान. ये एग्जांपल है क्विट प्लान का कि चूज टू क्विट. आज आपने डिसाइड किया कि बस अब मुझे क्विट करना है, तो मैं विद इन नेक्स्ट 7 days कैलेंडर में आपको एक डेट दूंगा कि आज 31st है, तो आई विल स्टॉप स्मोकिंग फ्रॉम 2nd, या आई विल स्टॉप स्मोकिंग फ्रॉम कमिंग मंडे, तो 4th तक संडे है, 5th से आई विल नॉट. चूज अ डेट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको भी यू विल गेट प्रिपेयर्ड, योर बॉडी विल गेट प्रिपेयर्ड, मेंटली यू विल गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. देन चूज अ मेथड. गो कोल्ड टर्की और ग्रेजुअली. ये भी आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपके बॉडी के ऊपर, आपके हैबिट्स के ऊपर. सो वी टेल देम टू गो कोल्ड टर्की और ग्रेजुअली. डेटा से पाया गया है कि कोल्ड टर्की इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, बट देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. कोल्ड टर्की क्या होता है? कोल्ड टर्की होता है कि बस मैंने डिसाइड कर लिया कल से नहीं पीना है. आप चाहे आज दिन में 20 सिगरेट भी पीते हैं, फ्रॉम टुमारो यू विल नॉट स्मोक इवन अ सिंगल सिगरेट. तो उसे कहते हैं कोल्ड टर्की, कि एकदम से छोड़ दिया. तो in many cases it is very helpful, it actually helps. क्योंकि जो second method होता है gradually, कि we tell you to reduce 1 cigarette per day and try to quit it within a month या within 2 weeks. तो आप अगर 10 सिगरेट लेते हैं, कल 9, परसों 8, या 2 करके भी कम करेंगे, और ऐसे gradually कम करेंगे. Sometimes हो नहीं पाता है, तो यूजुअली वी सजेस्ट दिस. जो कम पीते हैं, ऑलरेडी 5 सिगरेट ही पी रहे हैं, बट जो ज्यादा पी रहे हैं उनके लिए कोल्ड टर्की बेटर होता है. देन डिसाइड बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर, निकोटीन पाथ और मेडिसिन.
तो जो सबसे कॉमन थेरेपी मानी जाती है दैट इज एनआरटी, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो बेसिकली आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उसमें निकोटीन है, बाकी केमिकल्स के लिए आप नहीं पी रहे, आप बस उस निकोटीन की तलब के लिए, उस एडिक्शन के लिए पी रहे हैं, क्योंकि उसमें निकोटीन है which releases dopamine in your brain. Dopamine release होता है, you feel better. Dopamine is basically a rewarding mechanism of our brain. तो इसको क्विट करने के लिए हम निकोटीन से ही रिप्लेस करते हैं और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो निकोटीन में क्या, ज्यादातर लोगों ने एड्स वगैरह भी देखे होंगे, निकोटीन च्युइंगम्स पाए जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो उस तरीके से निकोटीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, प्लस जरूरत हो तो अलॉन्ग विद मेडिसिन भी स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, किसी डॉक्टर से मिलके डिस्कस करेंगे जो स्पेशली स्मोकिंग सिचुएशन में वर्क कर रहे हैं। देन प्रिपेयर, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, सेट अ डेट। उस डेट के होते ही यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ मेंटली, बॉडी वाइज। आप डिसाइड कर ले तो आप अपने क्रेविंग से कैसे डील करेंगे। यू प्लान ऑन हेल्दी फूड, यू प्लान ऑन, जैसे कई सारी चीजें होती हैं इस क्रेविंग से फाइट करने के लिए। डार्क चॉकलेट्स बहुत अच्छे होते हैं। देन ये सैलेड्स, रॉ सैलेड्स, च्यूइंग। अलग लोगों की अलग हैबिट होती है। कुछ लोगों को हाथ में, फिंगर्स के बीच में कुछ चाहिए होता है, यू रिप्लेस दैट विद अ स्ट्रॉ, विद अ पेन पेन। कुछ लोगों को मुंह में रखने के लिए है, तो यू स्टार्ट बाइटिंग ऑन कैरेट्स। इस तरह की कई सारी चीजें होती है जिन पे वर्क करना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक सिगरेट हमने क्विट किया, इट एक्चुअली चेंजेस ऑल योर लाइफ रूटीन्स। आपको अपनी रूटीन्स चेंज करनी पड़ेंगी, उसमें चेंजेस छोटे छोटे लाने पड़ेंगे, ताकि आप उन जगहों पे जाना छोड़ दे जहां पे लोग स्मोक कर रहे हैं। पार्टीज कुछ दिनों के लिए क्विट कर दे, क्योंकि ये एक हैबिट में आ जाता है। कोई फ्रेंड ही मिला, अच्छा यार एक सिगरेट से क्या होता है, एक फूक ले लो। बट नो, दैट अफेक्ट्स अ लॉट। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट क्विटिंग स्मोकिंग, वो रूटीन्स में भी आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे when you are in the quitting phase। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा के लिए पार्टी करना छोड़ दीजिए, बट स्पेशली ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 2 weeks to 4 weeks, एक महीना, you have to be a little strong and doing these things, and they really help. Lastly, quit on your quit day। जिस दिन क्विट डे आ गया, बी कॉन्फिडेंट। अच्छा नहीं, आज से नहीं हो पा रहा, कल से नहीं, आपने डेट चूज किया है, यू हैव टू होल्ड फर्म ऑन दैट। तो निकोटीन प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? निकोटीन पैचेस आते हैं, निकोटीन स्प्रे आते हैं। ई सिगरेट्स में भी निकोटीन होता है, बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है। निकोटीन लॉजेंजेस, निकोटीन गम्स और निकोटीन इनहेलर्स भी अभी मार्केट में आना शुरू हो गए धीरे धीरे। सबसे कॉमनली जो यूज किए जाते हैं, निकोटीन गम्स यूज किए जाते हैं। 4 mg और 2 mg डोजेस में अवेलेबल है। सिमिलरली निकोटीन पैचेस की भी एक जर्नी होती है। 21 mg, 14 mg, 7 mg में पाए जाते हैं, जिनको आप अपने बॉडी पे लगा सकते हैं। इट इज क्लीन, इट इज डिस्क्रीट, किसी को दिखेगा नहीं। च्युइंगम चबाएंगे तो लोग पूछ सकते हैं, या कई जगह प्रॉब्लम हो सकती है चबाने में, तो उसके लिए निकोटीन पैच यूज किया जाता है। इन चीजों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, किसी चीज की कोई साइड इफेक्ट्स है, निकोटीन पैचेस से बॉडी में रैश वगैरह आ सकते हैं, तो उस केस में च्युइंगम यूज कर सकते हैं इस तरह से। बट यहाँ एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक देखा गया है, दैट इज योर निकोटीन पैच। जिस निकोटीन के लिए आपने सिगरेट छोड़ के निकोटीन किया, पीपल बिकम यूज्ड टू दैट पैच। कई लोग हैं वो फिर निकोटीन पैच के स्टेप 3 से स्टेप 2 में आ ही नहीं रहे हैं, वो 21 mg निकोटीन यूज किए ही जा रहे हैं। नाउ दे हैव बिकम एडिक्टेड टू द च्युइंगम और बिकम एडिक्टेड टू द निकोटीन पैच। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जैसा मैं कह रहा था, इस जर्नी में आप अकेले हमेशा जरूरी नहीं है आप कर पाएंगे। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मदद लीजिए, डॉक्टर की मदद लीजिए, काउंसलर की मदद लीजिए। सबसे बोलिए, बी वोकल अबाउट इट, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स से बोलिए, सो दैट दे विल कीप नैगिंग यू, आस्किंग यू, थोड़ा अरे तुमने तो छोड़ दिया था, क्या हुआ, क्या कर रहे हो अभी, कितना है। एंड यू कैन इवन मेंटेन अ कैलेंडर। देयर आर लॉट ऑफ एप्स नाउडेज अवेलेबल। आई एम
smoke free from last 90 days, 120 days, ऐसे करके आप record maintain कर सकते हैं. So all these methods have to be followed. It's not again and again. It's not only about leaving one cigarette or gutka or bidi tambaku, but it's about going through that journey with help of everyone. So thank you. There's a lot to it. काफी चीजें हैं, लेकिन I tried to cover it as much as possible. So I think we can further discuss, Dr. Swati. Yeah, Dr. Sarthak, we have received a couple of questions. Sure. So I can take those questions. Thank you, Dr. Afia, for sharing these across. So I think the very first thing, you have already covered it, but I still want to take it. Can patches like tobacco nil help quit smoking? Yes, If you just want definitely. Patches, see, as I told you, nicotine is the reason जिस वजह से हमें सिगरेट का एडिक्शन हो रहा है. तो patches like tobacco nil can definitely help you quit smoking, but then कितना लेना है, क्या करना है, ये आपको अपने डॉक्टर से मिलके ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डोजेस में आता है. 21 mg, 14 mg, 7 mg. अगर आप मोर देन 30 cigarettes a day ले रहे हो या 5 cigarettes a day ले रहे हो, then 21 mg is for you. Then 2 weeks to 4 weeks, then we step down to 14 mg. अगर आप 20 cigarettes से कम ले रहे हो, 14 mg. अगर आप 5 cigarettes a day और 2 cigarettes a day ले रहे हो, then we will start with 7 mg. तो इस तरीके से होता है. Definitely helps you, but the right pathway have to be followed. Yeah, I think that this was a very important piece of information. One of our viewers has also asked how to get rid of the habit of chewing tobacco. I think हमने smoking के बारे में काफी डिटेल में बात करी, पर smokeless tobacco के अराउंड अगर आप कुछ शेयर करें. Sure. So habit of chewing tobacco, देखिए उसका बेस सेम है कि that also releases nicotine और nicotine से ही आपको वो होगा. तो ट्रीटमेंट almost remains the same कि आपको nicotine patch, nicotine therapy along with some medicines जो available है अभी मार्केट में, जो mainly यूज होता है. I don't want to go into that, but bupropion सबसे commonly यूज होता है. Initially ये as antidepressant आया था, लेकिन बाद में पाया गया कि इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इन टू हेल्प यू क्विट स्मोकिंग. तो मेडिसिनल हेल्प बेसिकली होता क्या है, देखिए कि इफ यू आर हैविंग च्यूइंग टोबैको और सिगरेट और हुक्का, सो उसमें आपको डिसाइड करना है. मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आई हैव टू स्टॉप, आई हैव टू क्विट स्मोकिंग. आपको हुक्का नहीं पीना है, आपको टोबैको गुटखा नहीं खरीदना है, आपको छोड़ देना है. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स कि जब बॉडी रिएक्ट करने लगता है, जो वो निकोटिन नहीं मिल रहा, तो दिस इज वेयर द मेडिसिन्स विल हेल्प यू कि आपको आपके डिप्रेशन, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती, इरिटेशन होता है, वॉमिटिंग लगती है, धड़कनें बढ़ जाती, इन सारी चीजों से डील करने में मेडिसिन हेल्प करेगा. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया करना है इस होल थिंग में, दैट इज कंडीशनिंग. लोग क्विट तो कर देते हैं लेकिन फिर रिलैप्स हो जाता है. तो रिलैप्स क्यों होता है? बिकॉज यू डोंट मेक इट अ हैबिट टू स्टे स्मोक फ्री. कंडीशनिंग बहुत जरूरी है. कंडीशनिंग इन द सेंस की निकोटीन हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, डोपामीन रिलीज होता है. उस चीज को जब हम सिगरेट नहीं पी रहे तो किस चीज से रिप्लेस करें? यू हैव टू अडॉप्ट अ न्यू हैबिट दैट इज मेकिंग यू हैप्पी, दैट इज गिविंग यू रिवॉर्ड्स. छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, जैसे आपने कोई नया स्किल सीखा, ठीक है ना. अब इसको इस तरह से समझिए कि हम लोग एक नया लैंग्वेज सीख रहे हैं या क्या नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं. सीख तो लिया, 2-3 दिन तक बजाया भी या बोला भी, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे भूल जाएंगे, नहीं याद आएगा. तो प्रैक्टिस इसका बनाना पड़ता है, इसको हैबिट में आपको रखना पड़ेगा. कोई ऑफर कर रहा है, मना कीजिए. कहीं जा रहे हैं, लोग स्मोक कर रहे हैं, आप उस गैदरिंग में मत जाइए, थोड़ा दूर बैठिए. उसी तरीके से
प्लस नया हैबिट अडॉप्ट कीजिए जो आपको बेटर फील करा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट ने राइटिंग हैबिट, कई ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए स्पेशली अबाउट हर जर्नी ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग. उस ब्लॉग्स पे व्यूज आने लगे या कमेंट्स आने लगे और भी मॉनेटरी हेल्प भी हुई. तो दैट वाज समथिंग रिवॉर्डिंग. वो उनको मोटिवेट किया, वो आगे और भी ब्लॉग्स लिखते हैं. तो इस तरह की हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ेगी. एंड स्पेशली अबाउट च्यूइंग गुटखा, जो स्मोकलेस टोबैको है, इसके लिए आपको च्यू करने की हैबिट है. तो आपके लिए सबसे अच्छा है निकोटीन गम. अब निकोटीन गम, देखिए, निकोटीन च्यूइंग गम्स इज नॉट लाइक नॉर्मल च्यूइंग गम. उसको हम ऐसे चबाते नहीं रह सकते हैं. थोड़ा सा चबाया जाता है, फिर दांतों के बीच में रख लिया जाता है. उसका जो जूस रिलीज होता है, जो लिक्विड आता है, उसमें निकोटीन होता है. वो आपको ब्रेन में फिर से डोपामिन रिलीज करता है. फिर से जब आपको थोड़ी देर बाद क्रेविंग होने लगेगी स्मोकिंग की या गुटखा खाने की, देन यू कैन अगेन च्यू ऑन दैट. फिर से रिलीज होगा. तो जब तक ये टेस्टलेस नहीं हो जाता, इस मेथड को फॉलो किया जाता है. बिल्कुल. डॉक्टर सार्थक, एक और क्वेश्चन है. हाउ टू, आपने टच किया था पैसिव स्मोकिंग पर, बट क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है. हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्व्स अगेंस्ट पैसिव स्मोकिंग? आर देयर एनी इम्यूनिटी बूस्टर्स, natural or synthetic, which we can give to children and adults to protect them against passive smoke? Okay, so the best way to protect yourself against passive smoking, especially if at home, say no. जो स्मोक कर रहे हैं उनको मना कीजिए. अदरवाइज बहुत ही इट इज वेरी डिफिकल्ट. मास्क पहनना पड़ेगा पब्लिक प्लेसेस में. वेयर मास्क हेल्प्स यू अ लॉट. एंड एट होम आल्सो इम्यूनिटी बूस्टर इज गुड. द इम्यूनिटी बूस्टर विल हेल्प यू इन लॉट ऑफ वेज. जो नॉर्मल मल्टीविटामिन्स आती है, दैट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी. बट स्पेसिफिक इफ यू आर आस्किंग अबाउट कि सिगरेट के अगेंस्ट या स्मोकिंग के अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी बूस्टर है, ऐसे नहीं होता है. क्योंकि एज आई टोल्ड यू, उसमें मोर देन 7,000 टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं. किस चीज के अगेंस्ट आप प्रोटेक्ट करेंगे सर? तो द थिंग इज यू हैव टू बी वोकल अबाउट इट. पब्लिक प्लेसेस में भी सी इट इज इलीगल. गवर्नमेंट ने भी मना कर रखा है. इफ यू सी समवन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, इन रेस्टोरेंट, इन मेट्रो, से नो. आप मना कर सकते हैं बिल्कुल. तो दैट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट. Otherwise, wear mask for your children also. Keep them at a distance. That is the only possible way. I think that helps a lot. With this, there is one more interesting question. Is the process of quitting smoking same as quitting alcohol? बात नहीं करिए, but it is also one of the lifestyle habit. I just want you to take this up. Yes. See, it's actually is जो journey की मैं बात कर रहा था. This journey is helpful for quitting any of the addictions. किसी भी चीज की addiction. So, except for the personal part, आपको डिसाइड करना है कि यू वांट टू क्विट. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. जब एक बार डिसाइड कर लिया, देन यू quit, you follow the journey. As I said, be vocal about it. Tell everyone, stop going to such places. And alcohol is rather easy, and उसके mostly the things are reversible अगर liver वगैरह damage नहीं हुआ हो, and it flushes out of the body very soon. Cigarettes का effect, smoking का effect, tobacco का effect 15 years later तक रह जाता है. मतलब if you have stopped smoking today, 15 साल बाद जाके आप उस स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पे you having a heart attack and a non-smoker having a heart attack becomes the same. Otherwise वो एक इस तरह ग्राफ बन ही जाता है. बट अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं है. And similarly with many other things, जिन चीजों का एडिक्शन होता है, the journey remains the same, the basic method remains the same. Only the medicine part changes. Understood. Apart from this, एक और question है. Is frying tobacco powder harmful? Can it affect the people near the frying area? I am not sure what tobacco powder frying is done for. अगर आपको idea है.
और You can take it like this कि जैसे frying in the sense वही है जैसे हुक्का में डाल रहे हैं. Even we are burning it in the smoking. I hope I am taking this the right way. Otherwise, I also don't know what burning tobacco powder means. But वो जलता है, जलने के बाद ही अपना इफेक्ट या निकोटिन रिलीज करता है. चाहे वो सिगरेट में जल रहा है, स्मोकिंग पाइप में जल रहा है या हुक्का में जल रहा है. तो yes, of course, it is not safe and ये वो जो धुआं निकलेगा if you are around that that will definitely harm. Yes. Are there any supplements that can help quit smoking? Supplements in the sense, majorly with smoking has to be come from you. कि I will not smoke from tomorrow. Otherwise, no medicine will help you as such. To medicine ले रहे हैं या supplement ले रहे हैं, I will not feel smoking. कि I don't want to smoke anymore. ऐसा नहीं होगा. But once you have quit the smoking, then it is not necessary that many people can manage a lot of almost 20% people go without medicine and they successfully quit smoking. So you can always take upon habits. As I मैंने कहा, it's not only about supplement. Start you start eating. ये एक point मैं miss कर गया कि you start eating a lot to distract yourself और वो तो उसमें एक रहता है काफी लोग आता है कि weight gain हो गया. But then I would always say कि 2-3 किलो weight gain होने से जिसको हम फिर से lose कर सकते हैं, it's much better to be safe from having a 15 years of or cancer से तो you can even lose your life. So in that sense, eat healthy, drink plenty of liquids. You can always take multivitamin supplements. Vitamin C also helps a lot. Vitamin E and other than that, जितने भी salads है, raw vegetables है, you can take all those. Dark chocolate also releases some to some extent nicotine. Black coffee, ये सारी चीजें especially जिस समय आपको इच्छा हो रही है, तलब जग रही है, उस समय आप अगर black coffee या dark chocolate लेते हैं, that helps. Okay. Someone has asked how to tackle acidity related to quitting smoking. Very legitimate question. ये जिन्होंने किया है ट्राई वही ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So I am very happy. When of course वो एसिडिटी के साथ और भी चीजें होती हैं. नोजिया, वॉमिटिंग भी फील होता है, पेट में दर्द भी होता है. तो इस चीज के लिए आई ऑलवेज एडवाइस कि जैसा कि मैंने अभी भी कहा, ऑलवेज टेक द कंप्लीट जर्नी. सबकी हेल्प लीजिए, डॉक्टर की भी हेल्प लीजिए, काउंसलर की भी हेल्प लीजिए जो आपकी काउंसलिंग करे. तो डॉक्टर जब आपको ट्रीटमेंट देगा वो सिर्फ ये मेडिसिन नहीं देगा कि जो भी प्रोपियोन या निकोटीन पैच, बट ही विल गिव यू एन ओवरऑल ट्रीटमेंट. एंटासिड्स भी रहेंगे, गैस मेडिसिन रहेगी, वॉमिटिंग वगैरह की भी मेडिसिन रहेगी. प्लस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज लोग भूल जाते हैं कि स्पेशली इन केसेस ऑफ रिलैप्स कि ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है. इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है या गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है. एक जापानीज प्रोवर्ब है कि सक्सेस इज नॉट फॉलिंग 7 times बट गेटिंग अप द 8th time. आप कोशिश करते रहिए कोशिश. इस वजह से आप जो है कि अगर रिलैप्स हो रहा है फिर से अपने डॉक्टर से मिलिए. हम एज अ डॉक्टर आपकी हर बार हेल्प करेंगे. हम यही हेल्प कर सकते हैं कि हर बार आपको राइट पाथवे दिखाए. कई बार हो सकता है आप पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाए, पहले ही आप रिलैप्स हो गए. इट्स ओके. तो इसीलिए डॉक्टर्स आपको जितने भी साइड रिएक्शंस हैं, इनफैक्ट इंसोम्निया भी होगा, नींद भी नहीं आएगी, जरूरत पड़ने पे नींद की दवाई भी कुछ दिन चलाई जाएगी. ये सारी चीजें है. 2 वीक से 2 महीने तक की ये जर्नी होती है. अगर आपने सक्सेसफुली कर लिया विद हेल्प ऑफ योर डॉक्टर, ग्रेट. With this, I would just like to take one more question because I think we have received a lot of things, but mostly वो आपने throughout the talk cover कर लिया है, and we are almost nearing the completion of time. Is there any form of tobacco which is safe to consume? Sweet and simple, no. No tobacco is safe. उसकी जगह हाँ, जो ई वेप्स की मैं बात कर रहा था,
उसमें वो केमिकल्स नहीं होते हैं, बट वो निकोटीन होता है, वैसा ही धुआं निकलता है. ये यंगस्टर्स स्पेशली फाइंड इट वेरी rejoicing, enjoying, and first of all, it's very costly. It's very, very costly. And secondly, नहीं, वो भी अच्छा नहीं है. So no form of smoking or tobacco is safe or good. एक और चीज मैं बताना भूल गया था कि हाँ, many people don't go through this journey as the medications are a little bit costlier. लेकिन अगर आप एक्चुअली कंपेयर करोगे एंड पूरे महीने का बजट, तो मेडिसिन देन you will find it cheaper than the cigarettes, amount of cigarettes you purchase. I think this is a very, very important input. Because like you mentioned कि कई बार हम नॉन नेसेसरी चीजों पे स्पेंड कर रहे होते हैं, बट आवर हेल्थ विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट इज टेकिंग अ बैक सीट. तो ठीक है. I think Dr. Sarthak, we have covered almost all of the important questions. Apart from this, अगर आपके और भी कोई questions हैं तो you can drop them in our YouTube comment box, and हम Dr. Sarthak से बात करके आपको try करेंगे और answers available कराने की, या फिर एक नया session लेकर आने की, एक नया webinar जिसमें हम आपके और questions पे discuss कर सकते हैं. With this, Dr. Sarthak, I really want to thank you a lot. बहुत इंसाइटफुल सेशन था, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज हमने एक्चुअली में उन मुद्दों पे बात करी जो आपको क्विटिंग जर्नी में हेल्प करते हैं. एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज हाउ यू स्टेटेड दैट इट इज अ जर्नी. सो जैसे काफी लोग मैंने अपने आसपास भी देखा है, पीपल कीप चूइंग गम्स कि ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ क्विट स्मोकिंग, बट दैट एंटायर जर्नी, दैट होलिस्टिक सपोर्ट अराउंड what it takes to quit journey is very important. Yes, that's very important, and I'm glad I could be of some help. And I hope if people do want to quit, please, जैसा कि प्लान किया था, meet with your doctor, decide, plan. आप अगर डॉक्टर से मिलना भी नहीं चाह रहे हैं, at least see how far you can go by yourself. Quit and try over the supplements and self. If you are not able to quit, then next steps तो है ही, डॉक्टर से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, but do give it a try, because most important of all, you have to be ready. You should quit. Thank you. Thank you. Thank you everyone for joining us. We will just end with a very, very short message that quitters can be winners too. So with this message, we will take your leave. Thank you so much for joining us today. और जैसा डॉक्टर सार्थक ने बोला, अगर एक बार वापस भी रिलैप्स हो जाता है तो do start on your journey all over again. Yeah, with this, we'll just take your leave. Thank you, Dr. Sarthak. Thank you, Dr. Swati. Thank you. एक्चुअली उस टाइम पता है क्या हो गया था, मैंने ना नया वो डाउनलोड किया, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट एज, तो उसको परमिशन ही नहीं दे रखा था स्क्रीन शेयरिंग का, ये इशू हो गया था.